آج جو ہمارے ایکسکلوسیو مہمان ہیں وہ ہیں خرم ظفر, فاؤنڈر اینڈ CEO AJ Cargo Group. We have started our journey from China since in 2009. کاسٹ وائز سی کی کاسٹ زیادہ ہے یا بائی روڈ کاسٹ زیادہ ہے, اور اگر بائی روڈ کاسٹ زیادہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بائی روڈ کے اندر تھوڑی سی ٹرانسپورٹیشن چارجز ایکسٹرا ہیں, لیکن یہاں پہ آپ فیسلٹی بھی لے رہے ہیں. بائی سی میں 60 ڈیز کے اندر پاکستان پہنچ رہی ہے, بائی روڈ میں آپ وہی شپمنٹ 60 ڈیز میں 3 دفعہ گھما رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں کی لوکل کمیونٹی کو کیا بینیفٹ ہے آپ کے AJ Cargo Group کا؟ جہاں پہ AJ گروپ کے آفیسز ہیں اور جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے, وہاں پہ AJ گروپ تمام سٹیز میں ان شہریوں کو ہماری کمپنی میں امپلائمنٹ بھی دے رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان مرزا عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو. آج کا پروگرام ایکسکلوسیو اس لیے ہے کہ میں ہوں اس وقت خنجراب پاس پر, گلگت بلتستان. خنجراب پاس سطح سمندر سے 15,397 فیٹ بلندی کے اوپر ہے, اور آج جو ہمارے ایکسکلوسیو مہمان ہیں وہ ہیں خرم ظفر, فاؤنڈر اینڈ CEO AJ Cargo Group. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ AJ Cargo Group بنانے کا خیال ان کو کیسے آیا, کہ زمینی راستے سے چائنا سے پاکستان ٹریڈ کرنا اور یہاں پہ سہولتیں دینا, یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا؟ We have started our journey from China since in 2009. City name Guangzhou. From Guangzhou to Pakistan. And it's a quite tough and long route, 13,000 kilometers. اور یہ 13,000 کلومیٹر کا سفر تھا جو ہم نے سٹارٹ اپ میں لیا گوانزو سے لے کے پاکستان اسلام آباد تک. یہ زمینی سفر میں ہم نے پاکستان کی عوام کو ٹرانسپورٹیشن اور کارگو کی سہولت مہیا کی, کیونکہ بائی روڈ میں تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہیں. یہ کہ یہ 13,000 کلومیٹر کا جو یہ روڈ میپ ہے یہ بہت لمبا ہے, اور بائی سی کے اندر جو بائی شپ ہے سی میں وہ 60 ڈیز میں پہنچتا ہے کراچی, اور ہم یہاں سے پاکستان جو لاجسٹک ہے اور کارگو ہے اس کو 15 دن میں پہنچا دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو اس لیے چنا کہ یہاں پہ جو زمینی رستہ ہے اس کا ٹائم فریم ایک تو کم ہے, جس کی وجہ سے کسٹمر کو فیسلٹی ملتی ہے, وہ 40 ڈیز کا گیپ کور ہو رہا ہے اور سامان جلدی پہنچ رہا ہے. اور اگر یہاں پہ اگر میں آپ سے یہ کویشچن کروں کہ کاسٹ وائز سی کی کاسٹ زیادہ ہے یا بائی روڈ کاسٹ زیادہ ہے, اور اگر بائی روڈ کاسٹ زیادہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں ٹیکس بائی سی میں بھی کراچی پورٹ پہ بھی سیم ہے اور خنجراب پورٹ پہ بھی سیم ہے, لاہور ڈرائی پورٹ پہ بھی سیم ہے, پشاور ڈرائی پورٹ پہ بھی سیم ہے. ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز پاکستان کے تمام ڈرائی پورٹس پہ سیم ہے. اور رہی کاسٹنگ کی بات تو فریٹ بائی سی میں بھی اتنا ہی ہے, بائی روڈ کے اندر تھوڑی سی ٹرانسپورٹیشن چارجز ایکسٹرا ہیں, لیکن یہاں پہ آپ فیسلٹی بھی لے رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو ٹائم ڈیوریشن کی فیسلٹی بھی ہے, جہاں پہ آپ کی شپمنٹ بائی سی میں 60 ڈیز کے اندر پاکستان پہنچ رہی ہے, بائی روڈ میں آپ وہی شپمنٹ 60 ڈیز میں 3 دفعہ گھما رہے ہیں. آپ کے بزنس کا ٹرن اوور جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو جو تھوڑا سا کاسٹ ڈفرینس ہے وہ ہے, لیکن ٹائم ڈیوریشن جو ہے سب سے مین چیز میٹر کرتی ہے, ٹائم ڈیوریشن. اچھا مجھے یہاں پہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے چائنا میں اپنے ویئر ہاؤسز ہیں, اگر لوگ کارگو کے علاوہ ڈائریکٹلی اگر اپنی چیزوں کے لیے بھی آرڈر کریں تو کیا آپ وہ پرچیزنگ کر کے ساتھ میں یہ سروس بھی ان کو دیتے ہیں؟ جی بیسکلی AJ گروپ آف کمپنیز جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے نا, اس کے اندر سب سے بڑی ہماری جو سروس ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی ہے, جس کے اندر ہماری ٹرانسپورٹ ہے جو آل اوور دی چائنا.
all cities in China and all cities in Pakistan from land to land आ रही है, तमाम चाइना के शहरों से लेके पाकिस्तान के तमाम शहरों तक। सेकंड थिंग इसके अंदर ये हमारी कंपनी फैसिलिटेट कर रही है कार्गो सर्विस, कि चाइना के तमाम शहरों में ग्वांजो, इवो, खिचाओ, शेंजन, फुशान से लेके पाकिस्तान की मेजर तमाम सिटीज़ में हमारे ऑफिसेज एंड वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं। ओके, जहाँ पे हम ये कार्गो की फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड थिंग सोर्सिंग के ऊपर अब बात करें तो हमारे जो चाइना में ऑफिसेज हैं वहाँ पे हमारे चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। किसी भी कंपनी ने कोई भी चीज़ की सोर्सिंग करवानी है तो हमारा एजे ग्रुप उसकी सोर्सिंग करके उसको उसके डोर स्टेप पे वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ग्रेट। अगर यहाँ पे एक मैं आपसे सवाल करूं, एजे कार्गो ग्रुप ने पाकिस्तान के लिए कौन कौन से काम किए हैं जिससे ये जाना जाए कि आपने बड़ा बेहतरीन काम किया पाकिस्तान के लिए? एजे ग्रुप ने पाकिस्तान के लिए बहुत से काम किए हैं। अगर मैं आपको इस एक्सक्लूसिव में बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें से चंद एक अचीवमेंट्स मैं आपको बताता हूं। द बिग अचीवमेंट इज़ दिस, वी फील वेरी प्राउड दैट कि पाकिस्तान में जो डैम्स बन रहे हैं, दासू डैम, बादशाह डैम, इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मशीनरी, वी आर हैंडलिंग ऑल मशीनरीज फ्रॉम चाइना to Pakistan at the dam location. And second big achievement is this also, कि Hunza power project is installed and purchased and service we have provide them to installed by engineers, but service is provided by the AJ Group, AJ Transport. And main thing is the handling of such a big huge logistic. That's the main thing. And alhamdulillah, it was a great achievements and many more achievements for Pakistan, and we feel proud that we are contributing in our country. अगर यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके इसके बारे में मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान के तमाम अदारे हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी खुंजाब सिक्योरिटी फोर्स है ऊपर, जो यहाँ पे बड़े टफ हालात हैं, बर्फ़ कोई पता नहीं है यहाँ पे किस टाइम पड़ जाती है। और सेकंड थिंग NLC है, वो भी हमें सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। पाकिस्तान कस्टम्स हैं, उसके अलावा ANF है। ये तमाम अदारे जो हैं हमें यहाँ पे ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करते हैं और माशाल्लाह अच्छी सब लोग अच्छे हैं और अच्छे मामला चल रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी लॉजिस्टिक सर्विस, कार्गो सर्विस आ रही है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स हैं, अरबों रुपए का सामान है। यहाँ पे लोग सेफ्टी फील फ्री करते हैं बिकॉज देयर पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज ऑफ पाक आर्मी, एवरीथिंग इज सेफ। वी आर सिटिंग हियर ऑन द बॉर्डर बिकॉज जस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड वी आर प्राउड ऑफ पाक आर्मी। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी इस कार्गो सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें आप पाकिस्तान लेके आते हैं? इस कार्गो सर्विस के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आ रहा है, सबसे पहले तो फ्रेश फ्रूट आ रहा है, लाइक एप्पल एंड पियर। ये चाइना में जो यहाँ पे सेकंड सिटी है जिसका नाम है काशगर, वहाँ पे बागात हैं, वहाँ से एप्पल और पियर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आ रहा है। सेकंड थिंग वॉलनट, पीनट, और आप उसके ऊपर जनरल आइटम्स के ऊपर आ जाएं, जैकेट्स, शूज़, ग्लासेस, क्लोथिंग और डेंटल, और ये हमारा कॉस्मेटिक्स का सामान। उसके अलावा मोबाइल एसेसरी से रिलेटेड कैमरास और स्कूल बैग्स, तमाम अशिया जो के इंपोर्ट होती हैं वो तमाम चाइना की सिटीज़ से आती हैं। फैब्रिक, बहुत सी चीज़ें हैं जो तमाम, सोलर देख लें आप, और उसके अलावा ये सोलर पे हैवी मशीनरीज देख लें। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इसके अलावा यहाँ से इस रूट से और इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ रहे हैं, बड़ी चीज़ें आ रही हैं यहाँ से। बिकॉज चाइना आपको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर चीज़ चाइना बना रहा है, तो और हमें ये बेनिफिट है कि इस कॉरिडोर की वजह से हम ये फैसिलिटी
ذرا جلدی سروس دے دیتے ہیں. मुझे ये बताएं कि कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या मुश्किल फैसले आपको करने पड़े? यहाँ पे बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. देखें, ये 17 साल की जर्नी है अदील साहब. इस 17 साल की जर्नी में सबसे बड़ा और सबसे टफ डिसीजन जो हमारी कंपनी में था, मैं CEO हूँ कंपनी का, चेयरमैन हमारे भाई साहब बड़े एहसन ज़फ़र साहब, और ये उनका फ़ैसला था. और ये बहुत टफ फैसला था कि हमने एक इंटरनेशनल रूट पे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड को खोलना है. और सबसे मज़े की बात है, इस इंटरनेशनल ट्रेड को खोलने के लिए तमाम NOCs लेने हैं, तमाम बॉर्डर पासेस बनने हैं, मशीनरीज परचेज़ होनी है चाइना साइड और पाकिस्तान साइड से. ये बहुत बड़ा डिसीजन था और ये हमारी भाई साहब का ये ख्वाब भी था और उनका ड्रीम भी है हम सब का. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से हमने इसको अचीव किया. और सबसे बड़ी यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम पेश थी, 6 महीने ट्रेड होती थी, 6 महीने बॉर्डर क्लोज होता था. इसके अंदर हमने GB असम्बली में 2017 में रेजोल्यूशन पेश करवाई, जिसका इम्प्लीमेंट हुआ 2023 में. इस बॉर्डर को ऑल वेदर किया, 12 महीने के लिए खोला गया. सबसे बड़ा ये चैलेंज था हमारी कंपनी के लिए, बिकॉज वी हैव लॉजिस्टिक कंपनी, कार्गो कंपनी, सोर्सिंग कंपनी. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था. अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेंबर्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, जिन्होंने इसको अप्रूव किया. तो उसके बाद फिर जब ये अप्रूव हुआ तो 2023 में इस बॉर्डर की ओपनिंग भी एजे ग्रुप ने की और इसको तमाम कवरेज भी तब भी डिस्कवर पाकिस्तान ने दी. जी, अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी को क्या बेनिफिट है आपके एजे कार्गो ग्रुप का? बिल्कुल, यहाँ की लोकल कम्युनिटी, यहाँ की भी हर सिटी की जहाँ पे एजे ग्रुप के ऑफिसेज हैं और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चलती है, वहाँ पे एजे ग्रुप तमाम सिटीज़ में उन शहरियों को हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है. अब जैसे हमारी GB के हमारी तमाम ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी ड्राइवर हैं पाकिस्तान साइड पे, वो तमाम हमारे GB से रिलेटेड हैं. जो चाइना है, हमारी चाइनीज़ मशीनरीज़ के ड्राइवर हैं, वो सारे ये चाइना की जो फर्स्ट सिटी है ताशकुरान, यहाँ पे हैं. इसी तरह ही जो हमारे ग्वांजो में वेयर हाउसेज हैं, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट उधर है. आप मुझे ये बताएं कि ये एजे कार्गो ग्रुप है जो वो चाइना से पाकिस्तान तक ही महदूद है, खुंजराब से गिलगित तक, या गिलगित से बाहर भी इसकी सर्विसेज हैं? अदील साहब, जो एजे कार्गो सर्विस है वो ऑल ओवर दी चाइना टू ऑल ओवर दी पाकिस्तान, चाइना के तमाम शहरों से लेके पाकिस्तान के तमाम शहरों तक D2D, डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल है. ओके, ग्रेट. अच्छा मुझे ये बताएं कि अगले 5 साल में आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? हमारा विजन इसको ये है कि वी आर ऑन इट, कि हम 5 साल में इंशाल्लाह एजे कार्गो को यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले तो हम TIR का लाइसेंस ले रहे हैं, ट्रांजिट ट्रेड थ्रू सी पैक टू अदर कंट्रीज. एंड सेकंड थिंग ये है कि हमने बहुत सी मशीनरीज ली हैं, नई परचेज़ कर रहे हैं और लेटेस्ट ट्रक्स परचेज़ कर रहे हैं कि हम इस रूट को, इस ट्रेड को टोटल यहाँ से ग्वादर तक सर्विस प्रोवाइड करें कस्टमर को. अगर किसी का कंटेनर फॉर एग्जांपल दुबई जाना है, अफ़गानिस्तान जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, तो हम उसको चाइना से लोड करें और यहाँ से 15 दिन में ग्वादर पहुँचाएँ, जबकि शिप से वही कंटेनर यहाँ पे 50 दिन में पहुँचता है. पाकिस्तान के नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा ये मैसेज है कि जी आपका ये जो कॉरिडोर है, यहाँ से आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और चाइना के साथ आपके एक अच्छे ताल्लुकात हैं. आप लोग बिज़नेस कर सकते हैं अच्छे लेवल पे, नौजवान ऑनलाइन का बिज़नेस कर सकते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो चाइना से आप परचेज़ करके पाकिस्तान में फ़रोख्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे काम हैं. तो आप सबको चाहिए कि यंग जनरेशन को विज़िट करें, ना करें काम भले, विज़िट करें, चाइना में नई चीज़ें एक्सप्लोर करें. बहुत सी ऐसी नई इंडस्ट्री आ रही है चाइना में जो पाकिस्तान में फ़ायदेमंद है. बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें चाइनीज़ बना रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पे पहुंचनी चाहिए. उसके ऊपर नए लोगों का चाइना में जाना
کینٹن فیئر ہوتا ہے چائنا میں, وہاں پہ پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو نوجوانوں کو چاہیے کہ کینٹن فیئر کو اٹینڈ کیا کریں. اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں چائنا کا سب سے زیادہ پروڈکٹ کون سا بکتا ہے؟ پاکستان میں دیکھیں چائنیز جو لیڈیز فیبرک ہے, آپ کو پتہ ہے خواتین کا, وہ بہت آتا ہے. لیڈیز میک اپ بہت آ رہا ہے, موبائل ایکسیسریز بہت آ رہی ہے, لیکن ٹاپ پہ آپ دیکھا جائے تو لیڈیز فیبرک جو سوٹنگ ہے یہ ساری چائنا سے, کھچاؤ سٹی سے پاکستان آ رہی ہے. لاسٹ کویشچن, ڈسکور پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈسکور پاکستان پاکستان کے سافٹ امیج کو پوری دنیا میں دکھا رہا ہے اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. سب سے اچھی بات جو کہ پاکستان میں ٹورزم کو ایکسپلور کر رہا ہے, اور جتنے فارنر ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کو ایکسپلور کر رہا ہے, نئی سے نئی جگہز کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور نئی پلیسز کو, چاہے وہ فوڈ کی ہوں چاہے وہ ٹورزم کی ہوں. ڈسکور پاکستان از ڈوئنگ ریئلی ویری گڈ اینڈ ہارڈ ورک. نیور ایور ان پاکستان چینل از ڈوئنگ سچ بیوٹیفل اینڈ گڈ جاب. تھینک یو سو مچ خرم صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا آج آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تو ناظرین, آج تھے ہمارے ساتھ خرم ظفر, CEO اینڈ فاؤنڈر AJ کارگو گروپ. آج کا انٹرویو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا, کیونکہ آج ہم 15,397 فٹ کی بلندی کے اوپر بیٹھ کر یہ انٹرویو کر رہے ہیں, جہاں پہ سانس لینا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کو دلچسپ پروگرام ہم دکھاتے رہیں گے. اب ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.